morning everyone. Hope all is well and good. So let's continue our topic. Today's topic is Unit 5 and topic is factors affecting motor development. Today we will discuss about the factors which are responsible for the development of motor development. How to develop motor capacity in children from childhood to till life. The factors which are responsible or can affect the range of development. Today we will discuss that topics in this session. The first topic is biological factor. Biological factor is also known as a genes or hereditary factor. Right? The development of child in the category of motor is depend the characteristics, the capacity, the development range of their parents, and he or she get from his or her parents. The percentage of slow twitch fiber and fast twitch fiber also depend upon genes. So if our parents are healthy, they are capable to maintain, they are maintaining their motor developments in proper way, then it's well proved that the child will get these qualities in his or her body and can develop their motor capacity in proper manner, in progressive manner. Right? Next is environmental factor. Environmental factor is a very key and very important factor for the development of each and every concept. How? If your environment motivated you, yes, you can do it. Then definitely children will learn the motor development. They can motivate by the environment surrounding their home, school, playgrounds. Then they are much more have good development in the category of motor rather than those students, those parents, those environment is not supporting them. They are not getting any support from the environment. So we must appreciate each and every effort done by our surroundings so that they can learn a proper motor development. Right? Next is nutrition. Nutrition के बारे में don't think so कि हमें बात करनी चाहिए. Nutrition is the backbone of human body. It's a fuel. Right? If you are getting healthy food, nutrition diet, then you will able to perform the physical activities. Right? If you are not getting much quality diet, malnutrition, then you cannot able to perform basic movements of your body. Whenever you are failing to perform basic movements, how you can develop the motor development, motor skills, right? So nutrition is a backbone of our physical activity, our mental ability, right? Next is physical activity. Physical activity is the first milestone to start your motor abilities. How to walk, how to stand, how to sit, how to hold the pen, how to hold the bat, how to bowl, how to catch the ball. All these are the best example of physical activities. So those students who are involving in physical activity, they are getting more chance to getting development in their motor abilities rather than those students those who are not participating in their basic needs or their household's homework. Right? So next is opportunities पता है आपको क्या होती है कि if you are getting ample opportunity to perform in games, physical activity in sports, if you are getting chance, then you can develop your motor development, right? Motor capacity, motor skills. Motor skills mean to say opportunity means the experience. When you play at the district level, that's very different kind of learning. When you promote to the next level, state level, then you get new things. When you go national level, you go surrounding each and every skill from nation is using. So by opportunities, we can develop our motor skills in better way or in a healthy way. Corrections were already done during the opportunities by learning by seeing observation. सचिन तेंदुलकर हाउ टू स्केल खेल रहा है तो उसका स्टांस कैसा है ठीक है, वो जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी डायरेक्ट स्टेडियम में जाके मैच देखने की, उस टीम में खेलने की. राइट? तो अपॉर्चुनिटीज इज आल्सो रिक्वायर्ड कंपोनेंट टू डेवलप देयर मोटर एबिलिटीज. राइट? नेक्स्ट इज सेंसरी इम्पेयरमेंट. सेंसरी इम्पेयरमेंट मीन टू से इस पर्सन इज डेफ डम, उसको सुनने में प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है. तो ऑल दीज आर रिएक्शंस
कमांड्स ऑन योर मार्क गेट सेट गो, अब उसको अगर ऑडिबल नहीं है तो वो क्या रिएक्शन नहीं कर पाएगा, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाएगा। हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो वो इस चीज़ को नहीं देख पाएगा, राइट। अगर कोई विजुअल कमांड है, जैसे आपके ऑन रोड्स होती है ग्रीन लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट, तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो रिएक्शंस है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएंगे। तो सेंसरी इम्पेयरमेंट शुड बी अवॉइडेड बाय ईच एंड एवरी एफर्ट टू मेंटेन एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ motor skills. Those who are having these kind of sensory impairments, they cannot develop their motor skills in the comparison of a normal child or a normal student, right? Next is postural deformities. Postural deformities is topic में next topic आएगा, तो सब topic है postural deformities. There are so many postural deformities. First is lordosis, kyphosis, scoliosis, knock knees, bow leg, flat foot. If person having one of these deformity or any two or more than one, then they are by nature they cannot perform the motor skills. They cannot run, they cannot walk. If you are knocking knees, person he or she cannot be a part of Indian Army. So posture deformity is a major affecting factor to the development of your motor skills. So first of all, children should be taught about the proper posture or a good posture or a healthy posture, right? Next is obesity. Obesity, आपको पता ही है, obesity is the first printed invitation to all the disease, all the malfunctioning of human body. Obesity को अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ तो you are running, if a person is obesity, then he or she is running with overweight, he is carrying extra weight. तो वो उसकी बॉडी उस वेट के साथ बैलेंस करेगी या कमांड्स के साथ बैलेंस करेगी, तो दोनों में डिस्ट्रक्शन रहेगी और कहीं ना कहीं उसकी जो मोटर स्किल्स है वो डेवलप नहीं हो पाएंगी। तो फर्स्ट ऑफमोस्ट रिक्वायरमेंट टू बी हेल्दी और हेल्दी मोटर स्किल्स और डेवलपमेंट, वी मस्ट हैव हेल्दी बॉडी वेट, दैट इज BMI इज इक्वल टू 18.5 to 24.9, राइट। सो दीज आर द factors affecting motor development. First is biological factor, second is environment, then nutrition, then opportunities, फिर आपका है posture deformity, फिर है आपके पास obesity. इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखेंगे, हम लोग काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी मोटर डेवलपमेंट जो है वो और निखर के आएगी और शाइनिंग करेगी और वो हमें हेल्प करेगी टू परफॉर्म बेटर देन प्रीवियस एफर्ट्स, राइट। सो टिल देन दिस टॉपिक फॉर टुडे. Thank you very much and have a nice day. So next topic is the reasons for less participation of women in sports. However, this topic is the participation of women is increased tremendously, but even then we can comparison with men, there is still we have less participation of women in sports. Why? Q. So today we will discuss the reasons for less participation of women in sports. कि वो कौन से reasons हैं जिनकी वजह से women's की participation increase नहीं हो रही है as we have number in men category, right? तो first is lack of education, lack of laws. In 1972 USA में प्रपोजल स्टार्ट किया जिसमें क्या किया कि उनकी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को गर्ल्स के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प करेगी, ये लॉ है वहाँ पर। तो उस जब वो फैसिलिटीज़ वहाँ पे फाइनेंशियल एड स्टार्ट हुई तो वहाँ पे जो क्या हुआ कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आने शुरू हुए, टीचर्स अवेलेबल हुए, तो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन उनकी इंक्रीज होनी शुरू हो गई। But in India, we don't have such kind of law which can provide financial help or resources help to the women for increasing their participation in sports. So first is lack of laws. Second is lack of time. In India, still we have thought that girls are made for household works or for kitchen. उनके पास इतना समय फ्री टाइम होता ही नहीं है, they can think about the sports participation. या वो उनकी अर्निंग इतनी है, अर्निंग जॉब में है, वर्किंग है, वर्किंग आज
टाइट है कि उनके पास अपने लिए टाइम ही नहीं बचता कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन के बारे में सोच भी सके, राइट। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि गर्ल्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन के लिए नहीं होता, क्योंकि घरों में एटलीस्ट इंडिया में ये सिखाया जाता है कि भाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिस्टर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज नहीं है इन मल्टीपल कैटेगरीज। घर के काम कर लेती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पढ़ भी लेती है आज के टाइम में, बट कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन के लिए घर से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट होना चाहिए, स्टार्टिंग होना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। तो ड्यू टू दिस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस विमेन्स पार्टिसिपेशन इज लेस इन इंडिया, राइट। नेक्स्ट इज मेल डोमिनेटेड कल्चर इन स्पोर्ट्स। मेल डोमिनेटेड कल्चर इन स्पोर्ट्स, ये इंडिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैक्सिमम स्पोर्ट्स को स्ट्रेंथ के साथ जोड़ दिया जाता है कि मैन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, गर्ल्स जो है वीमेन जो है वो वीक होती है। नो डाउट एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल चेंज होता है, बट ये किसने कहा कि वुमेन्स को मैन के साथ पार्टिसिपेट करना है? गर्ल्स की टीम अलग होगी, मैन की टीम अलग होगी, राइट। फिर भी कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं इंडिया में जिनके बारे में ये रहता है कि वो मस्कुलर है, तो ओनली मैन कैन पार्टिसिपेट, वुमेन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन सच काइंड ऑफ गेम्स, राइट। तो मेल डोमिनेटेड जो कल्चर है स्पोर्ट्स में, उसको भी थोड़ा सा देखने चेक करने की रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पे इस चीज़ को हटाया जाए। एनीवन कैन पार्टिसिपेट, सीधी सी बात है, गर्ल्स ने गर्ल्स से पार्टिसिपेट करना है, मैन ने मैन सब करना है। तो ये कल्चर कहाँ से डेवलप हुआ कि नहीं ये गेम तो गर्ल्स के लिए बनी हुई है, रेसलिंग तो गर्ल्स के लिए बनी हुई है ना। अभी आपका एग्जाम्पल है बनिता फोगाट, तीनों सिस्टर्स, है ना। तो कहीं ना कहीं जो मेल डोमिनेटेड कल्चर है ये काम मेंस के लिए है, ऐसा नहीं है कि जब तक ये चीज़ नहीं निकलेगी तब तक गर्ल्स के माइंड में उस गेम के बारे में थॉट नहीं आएगा। और ये हम सब जानते हैं, थॉट्स बिकम द थिंग्स, राइट। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स एंड नो कवरेज ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स। ये सब की सब हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे ऊपर अप्लाई होता है। मैं और आप अगर बैठ के नाम लिखने शुरू करें इंडियन गर्ल्स टीम के क्रिकेट के, तो हम मिलके भी 11 नाम नहीं गिन सकते, है ना। लेकिन अगर मेंस की टीम का मैच हो रहा है तो 90-70 का मैच होगा ना, वो भी विद इंटरेस्ट देखेंगे। स्पेक्टेटर्स नहीं है गर्ल्स के टूर्नामेंट्स के लिए, और जब स्पेक्टेटर्स नहीं है तो कोई कवरेज नहीं है। जब कवरेज ही नहीं है तो क्या होगा, वो वहाँ कोई काम ही नहीं होगा। अब खो-खो है, वो क्यों बंद हुई? कोई देखने वाला नहीं है ना। अब कबड्डी प्रो कबड्डी शुरू हुई है तो इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया, तो रूल्स लोगों को पता है, अदरवाइज रूल्स नहीं पता। मैं किसी गेम की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, क्रिकेट के एक रूल्स मेरी मम्मा को पता है, क्यों इतना फेमस गेम है, क्यों? क्योंकि उसको देखने वाले हैं, कवरेज है उसका। कोई भी बड़ा से बड़ा प्रोग्राम इग्नोर करते हैं टेलीकास्ट ये चैनल्स वाले, लेकिन मैच दिखाएंगे। तो वी शुड बी ए गुड स्पेक्टेटर इवन फॉर द गर्ल्स टूर्नामेंट्स, तभी उनका कवरेज स्टार्ट होगा। जब कवरेज स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं जो गर्ल्स पार्टिसिपेट नहीं करी उनके मन में जाए कि हाँ वो गर्ल्स टीवी पे खेल रही हैं तो मैं भी खेलूंगी। टीवी एक बहुत बड़ा चार्म है, एक प्रोग्रेसिव मोटिवेटेड टूल है टीवी का, राइट। नेक्स्ट इज लैक ऑफ फीमेल स्पोर्ट्समैन एज ए रोल मॉडल। तो ये बात तो ऑब्वियसली क्लियर है कि एक आइडियल मैन होना चाहिए, रोल मॉडल होना चाहिए हमारा। विमेन्स में रोल मॉडल कहाँ से आएगा जब विमेन पार्टिसिपेशन ही नहीं होगी? टूर्नामेंट होगा, एक टीम लूज करेगी, एक टीम विन करेगी, कुछ टीम में कुछ लोग प्रमोट होंगे। डिस्ट्रिक्ट की एक टीम सारी टीम के प्लेयर स्टार नहीं बनते, इंटरेस्ट नहीं खेल के आते, उनमें से 2-3-4 डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से आ जाते हैं। तो रोल मॉडल तो जब ही जनरेट होगा जब रूट लेवल पे इन्वेस्टमेंट होगी, राइट। तो लैक ऑफ रोल मॉडल इन वुमेन इज आल्सो ए बिग चैलेंज फॉर अस। नेक्स्ट इज लैक ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस मूवमेंट्स। फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस मूवमेंट्स भी बड़ा एक क्वेश्चन होता है। इसमें क्या है, सबसे बड़ा क्या है कि गर्ल्स को इंडिया में मस्कुलर एक्सेप्टेशन नहीं मिलती सोसाइटी में। दे आर थिंक दैट गर्ल्स शुड बी सॉफ्ट। व्हाई? अब फिटनेस के लिए तो रनिंग करनी होगी, फिटनेस के लिए वेट ट्रेनिंग करनी होगी, फिटनेस के लिए जंपिंग एक्सरसाइज करनी होगी, फिटनेस के लिए साइकिलिंग भी करनी पड़ेगी, रनिंग भी करनी पड़ेगी, हर चीज़ करनी पड़ेगी जो एक मैन करता है फिटनेस में, या फिटनेस में जो रिक्वायर्ड है। स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों के अंदर गर्ल्स इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाती क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो मस्कुलर हो जाती है, इस वजह से गर्ल्स सामने नहीं आ पाती। तो ये मिसकंसेप्शन भी हमें अपने माइंड से निकालना होगा। गर्ल्स कैन बी ए मस्कुलर, इसमें रीजन क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, राइट।
नेक्स्ट आपके पास लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग विमेन से बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लैक ऑफ अवेयरनेस, गर्ल्स को अवेयरनेस के लिए उनको नॉलेज ही नहीं कि वो भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकती है। रीजन अभी पढ़ के आए, लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। गर्ल्स जब 5th या 6th क्लास के समझ होता है, 5th 6th क्लास में हुई गर्ल्स, तो उसके मदर जो फैमिली है उनको हाउस होल्ड में डाइवर्ट कर देता है कि आप घर के काम सीखो। उनको तो ध्यान ही नहीं जाता टीवी की तरफ या किसी टूर्नामेंट की तरफ, स्पोर्ट्स से तो कौन सा खेलती है ना। तो कुछ इन्वायरमेंट हमारा ऐसा है कि गर्ल्स हद से हद जो अवेयर देखो ना, नॉन स्पोर्ट्स गर्ल्स ज़्यादा से ज़्यादा स्किपिंग रोप इंटरेस्टिंग कर लेती है, वो अदरवाइज वो नहीं करता। क्यों? उनके पास अवेयरनेस नहीं है कि वो भी कर सकती है, राइट। तो इन अवेयरनेस को हमें इंक्रीज करना होगा। अवेयरनेस कब इंक्रीज होगी? जब हमारे नेबर से, हमारे घर से गर्ल्स खेलने जाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज लेस नंबर ऑफ वीमेन कोचेस। ये बड़ा बेसलेस सा लॉजिक लगता है मेरे को। देयर इज नो फीमेल कोच। कोच फर्स्ट एंड प्लेयर है। दुनिया में ऐसा कोई कोच नहीं है वर्ल्ड में जो कभी प्लेयर नहीं है। इंडिया में NS/NIS कोर्स होता है। फॉर दिस द फर्स्ट क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी इज यू शुड हैव नेशनल मेडलिस्ट और नेशनल पार्टिसिपेशन एटलीस्ट सम गेम्स। तो जो प्लेयर होगा वही कोच बनेगा। हम बात क्या कर रहे हैं? रीजंस फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स। जब गर्ल्स खेलने के नहीं आएंगी तो खेलने वालों ने ही कोच बनना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें वुमेन स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना होगा, उसे एक्सेप्ट करना होगा, राइट। नेक्स्ट इज एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी इज आल्सो ए वेरी गुड की रोल ऑफ इन प्रमोटिंग द इंडिविजुअल। सोसाइटी, अभी आपने वो मूवी देखी, दंगल मूवी देखी, घर में कितना प्रोटेस्ट था। जिसके फादर एक अच्छे नेशनल लेवल के रेसलर थे, घर में प्रोटेस्ट है, रिलेटिव से प्रोटेस्ट है, टूर्नामेंट खेलने के लिए फर्स्ट टाइम पे वहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं होने दिया, उनको खेलने नहीं दिया गया। क्यों? सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती वुमेन पार्टिसिपेशन। तो सोसाइटी कौन है? मैं हूँ सोसाइटी आपके लिए, आप हो सोसाइटी मेरे लिए। इट्स अ कीच ह्यूमन कीच है सोसाइटी। तो हमें अपना नज़रिया, अपना एटीट्यूड हमें बदलना होगा। जब एक कर सकता है तो सभी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है पास? लैक ऑफ पर्सनल सेफ्टी। एक बड़ा इनमोरल सा लॉजिक है, लैक ऑफ सेफ्टी है ना। सेफ्टी किसने करनी है? हमने करनी है। अब घर में से पेरेंट्स को तैयार आते भेजने के लिए, पर रास्ते में क्या हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, आप लोग डेली न्यूज़ पढ़ते हैं, आते हैं, न्यूज़ में आता है। तो हमें इन चीज़ों से भी ऊपर उठना होगा। हम ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब गर्ल हमारे सामने से चाह रही है। चलो उसको क्या कहते हैं, कमेंट करना, उसको डिस्टर्ब करना, उसको इग्नोर, उसको डाइवर्ट करना अपने मेन एम से, वो गलत है। तो सेफ्टी हमारे ऊपर डिपेंड करती है, सोसाइटी पे डिपेंड करती है कि हमारा वे ऑफ टॉकिंग कैसा है। हम गर्ल्स से ह्यूमन बीइंग है, जैसे बात करें उससे। तो सेफ्टी अगर हो जाएगी तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स हेल्प करेंगे अपने बच्चों को, अपने गर्ल्स को भेजने के लिए। अभी आप स्कूल्स में देखते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट में 50 गर्ल्स पार्टिसिपेट करती हैं, और बिलीव करो जो 50 में से 25 सेलेक्ट हुई है ना स्टेट के लिए, उसमें से 5 जाती हैं, 20 जाती हैं, ड्यू टू लैक ऑफ सेफ्टी। तो सेफ्टी आल्सो ए मेजर प्रॉब्लम फॉर द लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स। लास्ट इज लैक ऑफ प्रॉपर एक्सेस ऑफ फैसिलिटीज। ये एक बड़ा ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं लॉजिकल सा भी है। लैक ऑफ एक्सेस द फैसिलिटीज। हमारे पेरेंट्स सोसाइटी में इतने कैपेबल, रिसोर्सफुल नहीं है कि वो 2 या 3 बच्चों के लिए प्रॉपर फैसिलिटी दे पाए। एजुकेशन आज प्रॉपर हो गई है हर फैमिली से, गर्ल्स भी आते हैं, बॉयज़ भी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होती है कि फिर वो पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हमें बॉयज़ को प्रमोट कर दे, गर्ल्स को प्रमोट नहीं करते। तो इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बैलेंस हमें लेके आना पड़ेगा गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, ताकि गर्ल्स भी रिसोर्सेज को प्रॉपरली एक्सेस कर पाए। जब वो रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं वो ग्राउंड भी पहुँचेंगे। एक घर में साइकिल है, बाइक है, भैया जा रहे हैं, भैया किसी और गेम में जा रहे हैं, गर्ल्स और सिस्टर को किसी और गेम में जाना है, तो वो घर से सिर्फ कैसे ले जाएगी? हर घर के सामने स्टेडियम तो पॉसिबल नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन कहीं ना कहीं जरूरी है, फिर डाइट भी चाहिए आपको, फिर किट भी चाहिए आपको, फिर आपको ऑपरेटर्स भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ फैसिलिटी हो जाता है ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशंस। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें ओवरकम करके सोसाइटी को, ग्राउंड्स में जो सोसाइटी के
वेल एस्टेब्लिश्ड पर्सनस हैं, समाज सेवी हैं, सोशल वर्कर्स हैं, जो अच्छे फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, उनको टाइम टू टाइम विजिट करनी चाहिए कि कहीं कहीं कोई अच्छा टैलेंट है तो उनको वो हेल्प करते हैं। आप आजकल देखते हैं हेल्प होती भी है, कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्या है, एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज इज लेस for the girls in the comparison of boys, right? So these are the reasons for less participation of women in sports. Thank you.